Gaurav, your English teacher. Today we will study class 4th English lesson 12. The name of our lesson is Happy Prince Forever. Means forever means हमेशा के लिए जो प्रिंस हैप्पी रहता था. Oscar Wilde, a famous Irish poet and playwright of the 19th century, wrote a collection of stories for children in 1888. Read this touching story about an unusual pair of very kind souls. मीन्स ऑस्कर वाइल्ड बहुत सारी स्टोरीज राइट करते थे चिल्ड्रन के लिए. उसी का एक पार्ट है स्टोरी हम यहाँ पर रीड करेंगे. सेक्शन 1. There was once a prince who had everything he wanted, so he was never sad. एक प्रिंस था, एक राजकुमार था जिसके पास सब कुछ था जो कि वो चाहता था, इसलिए वो कभी सैड नहीं रहता था. His people called him the Happy Prince और वहाँ के लोग उसे Happy Prince कहते थे. When the Happy Prince died, his people had a statue made of him. और जब उस Happy Prince की डेथ हो गई तो वहाँ के लोगों ने उसका एक स्टैचू बना दिया. The statue was made of lead covered in gold. और जो स्टैचू था वो लेड से बनाया गया जिसको गोल्ड से भी सोने से कवर कर दिया गया. The eyes were made of blue gems और उसकी आंखें ब्लू जेम से बनाई गई. The statue was put up on the top of a tall pillar in the middle of the town. और स्टैचू को टाउन के भी शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़े पिलर पर लगा दिया गया. In that country the winters were very cold. और उस समय देश में वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती थी. So every autumn the swallows flew away to a warmer place. इसलिए ऑटम के सीजन में swallow means एक पक्षी होता है, एक बर्ड होता है, अबाबिल जिसको अबाबिल पक्षी कहते हैं, वो गर्म जगह पर चले जाते थे. That year one little swallow was late. और उस साल एक छोटा swallow late हो गया. The night he came to the town, he landed on the top of the tall pillar, right between the feet of the Happy Prince. और उस रात वो लेट हो गया था इसलिए वो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था उसके पैरों के बीचों बीच छुप गया. The little swallow was just settling down to sleep. The little swallow was just settling down to sleep when he felt a drop of water. वो जो लिटिल swallow था वो सोने ही वाला था कि उसे एक बूंद का एहसास हुआ. He looked up to see tears falling from the prince's eyes. और उसने देखा कि प्रिंस का जो स्टैचू था उसकी आँख से आंसू बह रहे थे. Why are you crying? asked the swallow. और swallow ने प्रिंस से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो. Because of all the unhappy things I can see from here. तो प्रिंस ने कहा क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जो मैं यहाँ से देखता हूँ. What can you see? asked the swallow. swallow ने पूछा क्या देखा तुमने. Far away in a small room lives a poor woman, said the prince. Her little boy lies ill and in bed, but his mother has no money for medicines. प्रिंस ने कहा कि यहाँ से बहुत दूर एक छोटे कमरे में एक गरीब औरत रहती है जिसका बेटा बहुत बीमार है लेकिन उसके पास अपने बेटे का इलाज के लिए पैसे नहीं हैं. He will surely die. और वो सचमुच ही मर जाएगा. Little swallow, will you take her the red ruby from my sword? It can save her son's life. और प्रिंस ने swallow से कहा कि क्या तुम मेरी sword मीन्स तलवार, मेरी तलवार से ये रेड रूबी ले जाकर उसे दे सकते हो, इससे उसके बेटे की लाइफ बच जाएगी. So the swallow packed out the gem and flew off with it to the woman's house. swallow ने रेड रूबी लेकर और उस वुमेन के घर चला गया. The boy was tossing about in his bed, but his mother was so tired she had fallen asleep with her head on the table. The swallow put the ruby beside her. और swallow वहाँ पर टेबल पे रूबी रख के आ गया. Then back he flew to tell the happy prince. और फिर वो वहाँ से वापस आया हैप्पी प्रिंस को बताने के लिए. It's funny, he said, but I don't feel cold anymore. That's because you did a good deed, said the prince. प्रिंस ने कहा कि तुमने good deed means तुमने अच्छा काम किया है. I am happy.
All the same, the swallow still wanted to fly away to the warm land where his brothers and sisters had gone. और फिर swallow वहाँ जाना चाहता था जहाँ पर उसके ब्रदर और सिस्टर्स थे. So that night he said to the prince, "Goodbye, I am off now." और उस रात उसने प्रिंस से कहा कि अब मैं जाता हूँ, Goodbye. Section 2. Little swallow, replied the prince, "Don't go yet." प्रिंस ने कहा कि अभी मत जाओ. I can see a young man in a bare room where there is no fire. उसने कहा कि मैं एक यंग मैन को देख सकता हूँ जो कि रूम में है, उसके पास कपड़े नहीं हैं और ना ही वहाँ पर फायर है. He is trying to write but his hand is too cold to hold the pen. और वो कुछ लिखना चाहता है लेकिन उसके हाथ नहीं लिख पा रहे हैं. And he has nothing to eat. और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है. Take one of my eyes. मेरी एक आँख ले जाओ. They are made of blue gems. वो ब्लू जेम से बनी हुई हैं. But I cannot do that, cried Swallow. Swallow ने कहा लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता. Please do as I ask, begged the prince. प्रिंस ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो. So the swallow pecked out one of the gems from the statue's eyes and flew with it to the young man. तो swallow ने वन जेम लेकर और वो यंग मैन के पास चला गया. He dropped the gem into a bunch of flowers on the table. और उसने जेम को फ्लावर्स के बंच में डाल दिया. When the young man saw it, he was so pleased that he forgot he was hungry and went on with his work. और जैसे ही यंग मैन ने जेम देखा वो ये भी भूल गया कि वो भूखा था और वो अपने काम में लग गया. Now I can pay my rent and buy some food, he said. और उसने कहा कि अब मैं अपना किराया भी दे सकता हूँ और कुछ खाना भी खा सकता हूँ. Back flew the swallow to tell the prince the good news. And now goodbye, he added. और अब फिर से swallow प्रिंस के पास आया और उसने फिर से कहा goodbye. Don't go yet, pleaded the prince. प्रिंस ने फिर रिक्वेस्ट करके कहा कि अभी मत जाओ. Look down there, वहाँ देखो. Do you see that little girl? She was trying to sell matches, but her hands were so cold that she dropped them in the wet and now they are of no use. उसने कहा कि उस लिटिल गर्ल को देखो, वो मैचेस बेचने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसके हाथ इतने ठंडे हैं कि वो गीली हो गई और अब वो किसी काम की नहीं है. Her father will scold her when she gets home. और जब वो वापस घर जाएगी तो उसके फादर उसे डांटेंगे. You must peck out the jam from my other eye and give it to her. तुम मेरी दूसरी आँख से जैम लेकर और उस गर्ल को दे दो. But if I do that, you won't be able to see at all, cried the swallow. Swallow ने कहा अगर मैं ऐसा करूँगा तो तुम्हें दिखाई नहीं देगा. You will be blind. तुम अंधे हो जाओगे. Please do as I say, begged the prince. प्रिंस ने कहा जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो. So the swallow took the blue jam and dropped it in the little girl's hand. तो swallow ने blue jam लेकर और गर्ल को दे दिया. How pretty she smiled when she saw it. उसने कहा अरे ये कितना अच्छा है. And she ran off home to give it to her father. और वो घर चली गई अपने फादर को देने के लिए. Once more the swallow flew back to the prince. और फिर swallow प्रिंस के पास आया. I cannot leave you now that you are blind. और उसने कहा अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि तुम ब्लाइंड हो गए हो, अंधे हो गए हो. I will stay with you and you can use my eyes to see. मैं तुम्हारे साथ I will stay with you and you can use my eyes to see. मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम मेरी आँखों से देख सकते हो. The prince wanted the swallow to fly over the town and tell him what he saw. प्रिंस चाहता था कि swallow पूरे टाउन में घूमकर आए और देखे कि वहाँ क्या हो रहा है. One day the swallow saw two little boys under a bridge trying to keep each other warm. एक दिन swallow ने दो लिटिल बॉयज को देखा जो कि ब्रिज के नीचे थे. Along came a policeman and told them to go home. और वहाँ पर एक पुलिसमैन आया और उसने उन लड़कों से कहा घर जाने को. He did not know that they had no home to go.
लेकिन उसे नहीं पता था कि उनके पास घर नहीं है। They just got up and went out hand in hand into the rain. और वो दोनों वहाँ से उठे और फिर बारिश में निकल गए। When he heard this, the prince was very sad. और जब प्रिंस ने ये सब सुना तो वो बहुत दुखी हुआ। I have no gems left, he said, but my clothes are made of gold. और उसने कहा कि अब मेरे पास जेम्स तो नहीं बचे हैं, लेकिन मेरे जो क्लॉथ्स हैं, जो कपड़े हैं, वो भी गोल्ड के बने हुए हैं। You must pack off a bit and give it to those poor children. तुम इसमें से कुछ पैक ऑफ में चुगना, कुछ चुग कर ले जाओ और उन गरीब बच्चों को दे देना। Every day the swallow saw someone who needed help, and before long all the gold on the prince had been given away. और हर दिन यही होता, swallow किसी भी गरीब को जरूरत पड़ती और प्रिंस अपना गोल्ड उसे दे देता। He stood on the top of his pillar, looking dull and grey, but the faces of the poor children were no longer white. और वो उस पिलर पर डल खड़ा हुआ था, लेकिन बच्चे बहुत खुश थे। Their cheeks were red and their thin arms and legs grew nice and round. और क्योंकि अब उन लोग गरीब नहीं थे तो उन लोगों को वो बहुत खुश थे। They no longer had to go beg for bread. और अब उन्हें बैग में भीख मांगने की जरूरत नहीं थी। Then snow came. फिर स्नो आया। The poor little swallow got colder and colder, but he would not go away from the prince. और जो पुअर लिटिल स्वेलो था वो ठंड के कारण और ठंडा हो गया, लेकिन वो प्रिंस को छोड़कर नहीं गया। At last he knew that his end had came. और फिर उसे समझ में आया कि अब उसका लास्ट टाइम आ गया है। Goodbye dear prince, he whispered as he fell at the statue's feet. और उसने कहा गुड बाय प्रिंस, और वो स्टैचू के पैरों पर गिर गया। गुड बाय रिप्लाइड द प्रिंस, प्रिंस ने भी उसे रिप्लाई किया गुड बाय। एंड समथिंग ब्रोक इनसाइड हिम, इट वॉज हिज हार्ट। और उसके अंदर कुछ टूटा जो कि उसका हार्ट था। नेक्स्ट डे द मेयर एंड द टाउन काउंसलर्स पास्ड बाय द पिलर एंड लुक्ड अप एट द स्टैचू। अगले ही दिन मेयर और टाउन काउंसलर वहाँ से गुजर रहे थे, और जब उनने स्टैचू को देखा, डियर मी हाउ शेवी अवर प्रिंस लुक्स, दे क्राइड। और दोनों ने कहा कि अरे हमारा प्रिंस कैसा लग रहा है। He seems to have lost all his jewels and someone has stolen his gold clothes. और उसका सब कुछ खो गया है और किसी ने उसके गोल्ड में सोने के कपड़े भी चुरा लिए हैं। And look, there is a dead bird at his feet. We can't have that here. It must be taken away at once. और देखो उसके पैरों के पास एक मरा हुआ पक्षी पड़ा है, हम इसे यहाँ नहीं रहने देंगे, उसे दूर ले जाओ। We would better take the statue down too, said another counselor. और दूसरे काउंसलर ने कहा कि हमें स्टैचू को भी उतार लेना चाहिए। We will put up a better one in its place. और हम इसकी जगह पर कुछ अच्छा लगाएंगे। Whose shall we put this time? और इस बार किसका स्टैचू लगाएंगे? Mine of course, said the mayor. मेयर ने कहा मेरा स्टैचू। Then they took down the prince's statue and melted the lead to make the new one. और फिर प्रिंस के स्टैचू को नीचे उतारा गया और उसे पिघलाकर एक नया बनाया गया। But the workman found a broken heart inside that would not melt. लेकिन वर्कमैन को उसके अंदर एक टूटा हुआ हार्ट मिला जो कि नहीं पिघल रहा था। So they threw it on the dust heap where the little dead swallow was lying. इसलिए उन्होंने उसे भी कचड़े के ढेर में फेंक दिया जहाँ पर वो मरा हुआ पक्षी पड़ा था। That night God told his angels, bring me the two most precious thing in this town. और उसी रात भगवान ने अपने फरिश्तों से कहा कि जाओ मुझे दो precious things, दो अनमोल चीज लेकर आओ। They brought him the broken heart and the dead swallow. और एंजल्स ब्रोकन हार्ट और डेड swallow लेकर आए। एंड गॉड सेड, यू आर राइट, दिस लिटिल बर्ड शैल ऑलवेज सिंग इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज एंड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज माई नेम फॉर एवर। उसने कहा कि ये छोटा बर्ड मेरे पैराडाइज गार्डन में रहेगा और हैप्पी प्रिंस भी यहाँ पर हमेशा के लिए रहेगा।
नाउ न्यू वर्ड्स. लीड, लीड मीन्स लैड, मार्ग दिखाना. स्वैलो, स्वैलो मीन्स अबाबिल पक्षी. टॉसिंग, हिलाना. प्लीडेड, प्लीडेड मीन्स बहाना बनाना. स्कोल्ड, स्कोल्ड मीन्स डांटना. विस्पर्ड, विस्पर्ड मीन्स फुसफुसाना. काउंसलर, काउंसलर मीन्स पार्षद. शैबी, शैबी मीन्स हटा पुराना. नाउ एक्सरसाइज असेसमेंट. क्वेश्चन नंबर ए. टिक द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है. फर्स्ट, द स्टैचू वॉज मेड ऑफ लेड कवर्ड इन. स्टैचू लेड से बनाया था जिसको किससे कवर किया था? गोल्ड. एवरी ऑटम द स्वेलोज फ्लू अवे टू अ. ऑटम सीजन में स्वेलोज कहाँ चले जाते थे? टू अ वार्मर प्लेस, किसी गर्म जगह पर. नेक्स्ट, द ड्रॉप ऑफ ब्लैंक फेल ऑन द स्वेलोज हेड. स्वेलो के हेड पर किसकी बूंद गिरी थी? ड्रॉप ऑफ टीयर्स, आंसू. हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू हेल्प द पुअर वुमेन बाय. हैप्पी प्रिंस ने पुअर वुमेन की हेल्प करने के लिए कैसे बोला था? टेकिंग हर द रेड रूबी फ्रॉम हिज स्वॉर्ड. अपने स्वॉर्ड से रूबी देकर. Why was the swallow not happy to take a jewel for the girl selling matches? Swallow उस गर्ल के लिए ज्वेल क्यों नहीं लेना चाहता था? Because he was afraid that without it the prince would become blind. क्योंकि वो डर गया था कि इसके बिना प्रिंस ब्लाइंड हो जाएगा, मीन्स प्रिंस अंधा हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर बी. राइट T for true and F for false statements. First, the prince was happy because he had everything. प्रिंस खुश था क्योंकि उसके पास सब कुछ था. क्या है? ट्रू. The statue was very happy. स्टैचू बहुत खुश था. फॉल्स. The swallow did not obey the prince. swallow ने प्रिंस की बात नहीं मानी. फॉल्स. The swallow got late to go to a warmer country. swallow वार्मर कंट्री जाने के लिए लेट हो गया था. ट्रू. God told his angels to bring the broken heart and the dead swallow. God ने अपने एंजल से broken heart और dead swallow लाने के लिए कहा. Question number C. Let us answer the questions given below. Question number 1. Who was crying and why? कौन रो रहा था और क्यों? Answer. The prince was crying by seeing the unhappy things. प्रिंस रो रहा था क्योंकि उसने बहुत सारी अनहैप्पी थिंग्स अपने टाउन में देखी थी. क्वेश्चन नंबर 2. वेयर डिड द प्रिंस वांट द स्वेलो टू टेक द फर्स्ट ज्वेल्स फ्रॉम हिज स्वॉर्ड? व्हाई? प्रिंस ने अपनी स्वॉर्ड से पहला ज्वेल किसे देने के लिए कहा और क्यों? आंसर इज द प्रिंस टोल्ड स्वेलो टू टेक द रूबी एंड गिव इट टू पुअर मदर टू ट्रीट हिज सन. प्रिंस ने स्वेलो से कहा कि तुम रूबी लेकर जाओ और उस पुअर मदर को दे देना जिससे वो अपने बेटे का इलाज करा सके. क्वेश्चन नंबर 3. वाई डिड द प्रिंस वांट द स्वेलो टू टेक द फर्स्ट ज्वेल फ्रॉम हिज आईज? प्रिंस क्यों चाहता था कि स्वेलो उसकी आईज से फर्स्ट ज्वेल लेकर आए? आंसर इज द प्रिंस वांट द स्वेलो टू टेक द जेम फ्रॉम हिज आई एंड गिव इट टू पुअर गर्ल. क्योंकि वो चाहता था कि वो जैम पुअर गर्ल को दे दे. क्वेश्चन नंबर 4. वाई डिड द स्वेलो डिसाइड टू स्टे विद द प्रिंस? स्वेलो ने प्रिंस के साथ रुकने का क्यों डिसाइड किया? आंसर इज आफ्टर हेल्पिंग अदर्स द प्रिंस बिकेम ब्लाइंड सो द स्वेलो डिसाइड टू स्टे विद द प्रिंस. क्योंकि सबकी हेल्प करने के बाद उसके जेम्स भी जा चुके थे और प्रिंस भी ब्लाइंड हो गया था, अंधा हो गया था, इसलिए स्वेलो ने डिसाइड किया कि वो अब प्रिंस के साथ रहेगा. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ मैनी पीपल डिड द प्रिंस हेल्प? प्रिंस ने कितने लोगों की हेल्प की? आंसर इज प्रिंस हेल्प मैनी पीपल्स, पुअर मदर, गर्ल, 2 बॉयज एटसेट्रा. प्रिंस ने बहुत सारे लोगों की हेल्प की थी. क्वेश्चन नंबर 6. Whose statue did the counselor want to put up in place of the happy prince? काउंसलर प्रिंस के स्टैचू की जगह किसका स्टैचू बनाना चाहते थे? तो आंसर इज द काउंसलर वांटेड टू पुट द मेयर्स स्टैचू इन प्लेस ऑफ द हैप्पी प्रिंस. काउंसलर मेयर का स्टैचू वहां पर रखना चाहते थे. नाउ वर्ड. क्वेश्चन नंबर डी.
The underlined words in the following sentences can be replaced by the words given in the box. Replace the words and rewrite the sentences. यहाँ पर बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं और यहाँ सेंटेंस में कुछ वर्ड अंडरलाइन है, तो हमें इन अंडरलाइन वर्ड्स को बॉक्स के वर्ड से रिप्लेस करना है और सेंटेंस को फिर से राइट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, प्लीज थैंक चिट्टी अगेन फॉर द डिलीशियस लड्डूस दैट शी सेंड फॉर मी। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड क्या है? डिलीशियस। डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट। इसके प्लेस पे हम क्या राइट कर सकते हैं? टेस्टी। टेस्टी राइट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? प्लीज थैंक चिट्टी अगेन फॉर द, डिलीशियस की जगह क्या आ जाएगा? टेस्टी लड्डूस दैट शी सेंड फॉर मी। मीन्स चिट्टी को थैंक यू करना कि उसने जो स्वादिष्ट लड्डू मेरे लिए भेजे हैं। ऐसे ही और भी हमें करना है। सेकेंड, यू विल बी एबल टू हेल्प मी सेव द ऑलिव रिडले टर्टल। यहाँ पर विल बी एबल टू की प्लेस पे क्या आ जाएगा? यू कैन। यू कैन हेल्प मी सेव द ऑलिव रिडले टर्टल। थर्ड, वी प्लान टू हेल्प सेव द ऑलिव रिडले टर्टल। प्लान की प्लेस पे क्या आ जाएगा? एम। वी एम। नेक्स्ट, every year these turtles swim back to the beaches where they were born. swim back की प्लेस पे क्या जाएगा? रिटर्न। और बाकी सेंटेंस को एज इट इज राइट करना है। फिफ्थ, सैडली nowadays we see few turtles on these shores. तो सैडली की प्लेस पे क्या जाएगा? unfortunately. सिक्स्थ, many of them get caught in fishing shows. मैनी की प्लेस पे आ नंबर। नेक्स्ट, जस्ट थिंक अबाउट इट, बिलीव। थिंक अबाउट इट मीन्स इमेजिन। दे हैव नेवर बॉदर्ड ह्यूमंस। दे हैव नेवर ट्रेवल्ड आ जाएगा। नेक्स्ट, ग्रामर फन। क्वेश्चन टैग। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स ऑफ सम क्वेश्चंस। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट देम? फर्स्ट, द प्रिंस इज क्राइंग, isn't he? The swallow hasn't gone, has he? Isn't he and has he are called question tags. क्या है ये? Question tags है। Isn't he, hasn't gone, has he. A question tag is question that is added to a statement to stress a point. If the statement is positive, the tag will be negative. If the statement is negative, the tag will be positive. मीन्स अगर क्वेश्चन टैग, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। कैसे? एग्जाम्पल, फर्स्ट, यू विल बी ऑन टाइम। यू विल बी ऑन टाइम, तुम टाइम पर आओगे। स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा? नेगेटिव। वोंट यू, नेगेटिव हो गया। सेकेंड, यू आर नॉट कमिंग। नॉट कमिंग स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा? पॉजिटिव। आर यू। क्वेश्चन नंबर ई, कंप्लीट दिस क्वेश्चंस यूजिंग अ वर्ड फ्रॉम ईच बॉक्स। क्वेश्चंस को हमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट, दिस इज हर बुक। स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा? नेगेटिव। इजंट इट, यू विल कम टुमारो। वोंट यू, they haven't come home yet, have they? You have brought the books, haven't you? We can take the bus, can't we? These aren't the right colors, are they? I didn't know that, did I? It isn't raining, is it? You do know them, don't you? They don't know this, do they? They won't take these, will they? You did tell her, didn't you? Now, listening and speaking skills. Your teacher will read out the names of some people who have created history. Listen to her and write their names in the correct columns. आपको यहाँ पर कुछ नेम्स राइट करना है, जैसे लीडर्स, कुछ लीडर के बारे में, जैसे महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी। साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट के बारे में, और एक्सप्लोरर्स मीन्स जिनने कुछ इन्वेंशंस किए हैं। सो दिस इज योर होमवर्क। नाउ राइटिंग स्किल्स। व्हाट कैन यू डू फॉर अदर्स? कैन यू हेल्प योर मदर विद द डेली टास्क? कैन यू गिव योर ओल्ड टॉयज एंड क्लॉथ्स टू नीडी?
What else can you do? Think and list out in the box below. मीन्स आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपनी मदर की हेल्प कैसे कर सकते हैं, क्या आप अपने पुराने कपड़े पुराने खिलौने किसी ज़रूरतमंद को देते हैं. सो ये सब आपको यहाँ पर राइट करना है. दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क. स्टूडेंट्स, योर लेसन 12 is completed. Do it in your copy. Thank you. Have a good day.